میں اس کے سخت خلاف ہوں، اس لیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر عورت کو آسانیاں دی جائیں تو وہ کچھ نہیں کرے گی، یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ شوہر تبھی طلاق دیتا ہے جبکہ اس کو وہ وائف نہیں پسند ہے، تو پھر اس کے بعد اگر بھتہ دینے کا کیا جائے تو یہ کوئی تک نہیں نظر آتی ہے۔ میں مینٹیننس کے خلاف اس لیے ہوں، پہلی بات تو وہ حرام ہی ہے۔ اور یہ بھتہ دینے سے کیا ہوتا ہے، دیکھیے جب آپ ایک غیر آدمی سے آپ کچھ لیتے ہیں وہ ایک بھیک ہوتی ہے، اور بھیک سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص آپ کے لیے حرام ہو چکا ہے تو وہ آدمی کا آپ لیں گے کیا حلال ہوگا؟ وہ پورے ہندوستان میں کوئی اور پرابلم ہے ہی نہیں، صرف مسلمانوں کا پرابلم ہے، طلاق، مینٹیننس اور بچے اور 4 بیویاں، یہی سب ہے۔ تو ابھی کی گورنمنٹ ہے اس کو کیا ہے کہ وہ ہر بات میں ہماری شریعت میں مداخلت کر رہی ہے۔ یہ جو مسلم عورت کی بات کرتے ہیں یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی مسلم عورت سے مطلب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے طلاق شدہ عورتوں کو جو ہے بھتہ دیا جانا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ عورت بہت کمزور سمجھ کے اس کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں، اس کو گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی کام نہیں کروانا چاہتے، نہ وہ پڑھے گی، نہ وہ لکھے گی، نہ وہ آگے بڑھے گی، نہ اپنے بچوں کو پال کے آگے کچھ بڑھا سکے گی۔ میں اس کے سخت خلاف ہوں، اس لیے کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر عورت کو آسانیاں دی جائیں تو وہ کچھ نہیں کرے گی، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ آئی ایم ڈیڈ اگینسٹ دیٹ مینٹیننس۔ میں مینٹیننس کے خلاف اس لیے ہوں، پہلی بات تو وہ حرام ہی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ حرام ہے۔ ہم لوگ کیونکہ قرآن اور حدیث کو ذرا سا مائنوٹلی پڑھ چکے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ کیونکہ جو شخص آپ کے لیے حرام ہو چکا ہے تو وہ آدمی کا آپ لیں گے کیا حلال ہوگا؟ وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ جب مرد حلال نہیں ہے تو اس کی چیزیں کون سے حلال ہو لیکن یہ جائیں؟ تو فائدے کا بتا کر کے جی آپ لوگ تو فائدہ ہی سمجھتے ہیں۔ اٹ از نو بینیفٹ، اٹس جسٹ ان کے لیے، بہت ہی عورتوں کے لیے، مطلب عورت تو کچھ نہ کر، بیٹھ، اور تیرا میاں جو تجھے طلاق دے چکا، تجھے گھر سے نکال چکا ہے اور تو اس سے پیسہ مانگ رہی ہے، اٹس ڈیڈ اگینسٹ اٹ۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ کس طریقے سے جو ہے خامیاں پیدا ہو جائیں گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی سماج میں، بتائیے۔ یہی بات تو کہہ رہی ہوں کہ عورت لیزی ہو جائے گی، کچھ کرے گی نہیں، اس کے بچے کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ حد سے کتنا پیسہ کمائے گی؟ حد سے 2-4 ہزار یا 10 ہزار، وہ 10 ہزار میں آج کل کے دور میں کیا کر سکتا ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ عورت کو آپ بیٹھ کے کھلانا چاہتے ہیں، نو۔ عورت کام کرنے والی عورت کو اس کی اپنی استطاعت جاننی چاہیے، اور وہ استطاعت کو آپ اس کو کم کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی جو عورت کی ہے، جو کر سکتی ہے، آپ اس کو بٹھا کے کھلانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ڈیڈ اگینسٹ اٹ۔ آف کورس میں نے وہی بات کہی کہ وہ ایز قرآن اٹ از حرام۔ آپ کہیں گے وہ آپ عورت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت بیچاری کو کتنا ملے گا؟ ارے بھائی آپ سوچئے، پورے ہندوستان میں کوئی اور پرابلم ہے ہی نہیں، صرف مسلمانوں کا پرابلم ہے، طلاق، مینٹیننس اور بچے اور 4 بیویاں، یہی سب ہے۔ ارے اسلام میں بہت کچھ ہے، آپ ذرا وائڈلی آپ اس کو دیکھیے۔ اور there is only problem which we think, I mean our Indians think, is that Muslim are a problem. No. کچھ خواتین ہیں جو اس کی حمایت کر رہی ہیں، جی مجھے پتا ہے، اور میں جانتی ہوں کس کون بنیاد پر کر رہی ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ کر رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ انہوں نے قرآن کو مائنوٹلی نہیں پڑھا ہے، نہ وہ جانتی ہیں کہ قرآن کے اندر کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، ایکسیپٹ کہ سور کا گوشت حرام ہے، فلانا کا یہ حرام ہے۔ جو اوپری چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں، جو مائنوٹلی جو گہری چیز ہے وہ اس کو ابھی نہیں پہچانی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ہر بندی کو جو اس کے سائڈ لے رہی ہے وہ ذرا سا قرآن کو بہت مائنوٹلی پڑھے
उसको तर्जुमा समझे उसके बाद, क्योंकि आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड अरबिक बैकग्राउंड, मैं अरबिक की ट्रांसलेटर कम अनाउंसर ऑल इंडिया रेडियो में थी, एंड आई एम ए ट्रांसलेटर ऑल्सो टिल नाउ. आई अंडरस्टैंड कुरान एंड आई नो इट इज़ हराम. इट इज़ हराम. सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत माना जाता है. और बिल्कुल ये है ही मुदाखलत. इट इज़ मुदाखलत, नथिंग एल्स. जी बोलिए. क्या करने की ज़रूरत है इस पर, किस तरीके से जो अभी आज जो आपने देखा, हम औरतों को आगे बढ़ के अपने लिए कुछ मकाम हासिल करना है, और वो मकाम हम हासिल कर रहे हैं. मैं इस जो आज कन्वेंशन हुआ है उसका डॉक्टर असमत के ख़ास शुक्र अदा करती हूँ कि हमें उन जैसी लेडी मिल गई जो ख़ुद भी काम करती है और करवाती भी है. एंड वी आर वर्किंग ऑन इट डे एंड नाइट. और हमें ऐसे ही औरतों की जो काम करने वालियां हैं, आइडल ना बैठे, हम आइडल ना बैठे. उनको ये जो कर रहे हैं मेंटेनेंस का, ये आइडल बैठाने का काम कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं. हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि औरतों को एम्पावर करना, औरतों को हर फील्ड में एम्पावर करना है, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो, और फिर फाइनेंस हो. हर फील्ड में बच्चों औरतों को हम लोगों को एम्पावर करना है, और किस तरह से हम लोग कम्युनिटी में मिल के इन सब काम कर सकते हैं. हमारा आज जो प्रोग्राम था उसका मकसद ये था कि हम लोग मिल के ये काम करें. और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो तलाकशुदा ख़वातीन हैं उनको भत्ता दिया जाना चाहिए. आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात कि जो तलाक हो जाती है तो वो औरत जो है शौहर के लिए गैर महरम हो जाती है, और शौहर तभी तलाक देता है जबकि उसको वो वाइफ नहीं पसंद है. तो फिर उसके बाद अगर भत्ता देने का किया जाए तो ये कोई तुक नहीं नज़र आती है. हाँ, बच्चे जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो हमेशा जो है वो शौहर की ही रहेगी, मतलब बाप की ही रहेगी, चाहे तलाक हो चाहे नहीं हो. लेकिन इस औरत की जो ज़िम्मेदारी है वो उस शौहर की नहीं रहेगी. और ये भत्ता देने से क्या होता है, देखिए, जब आप एक गैर आदमी से आप कुछ लेते हैं वो एक भीख होती है, और भीख से होता कुछ नहीं है, इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो अल्लाह सुब्हान तआला ने एक रूल बनाया है कि शादी जब होगी तो शादी के वक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो लड़का लेके आएगा. मतलब कि दान महल लड़का देगा. जो शादी के बाद जो घर शुरू होता है उस घर के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं वो लड़का लेके आएगा. बीवी के लिए गिफ्ट लड़का लेके आएगा. लेकिन हमारी सोसाइटी में उल्टा है. शादी के वक्त कहते हैं कि माँ बाप देंगे, भाई देगा, और जब तलाक के बाद कहते हैं कि शौहर देगा. अल्लाह ताला कहते हैं कि शादी के वक्त शौहर देगा, और तलाक के बाद वो औरत जो है वो माँ बाप की, अपने मतलब बाप और भाई की जिम्मेदारी है. और एक बहुत बिटर ट्रूथ है, हर सोसाइटी में एक कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें का उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है. तो जब इस पर हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया कि तो हमने ये देखा कि जिस सोसाइटी में तलाक के बाद जो है भत्ता देने की बात होती है, उस सोसाइटी में औरतों का अपने शौहरों के थ्रू जो है ना मर्डर बहुत कॉमन है. चाहे उसको आप डॉरी डेथ कह दीजिए. हमने इस पर पूरा रिसर्च किया. नियरली हमारे यहाँ डेली 22 जो है डॉरी डेथ्स होती हैं, और यूएस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स थे. हमको एग्जैक्ट अभी डेटा याद नहीं है कि जिसमें वो अपने शौहरों के थ्रू जो है ना उनकी बीवियों का मर्डर हुआ है. इसलिए कि एक मर्द जब तलाक देता है तो उसको बीवी पसंद नहीं है, अब बाद में उसको अपनी मतलब वो पसीने की कमाई जो है उसको उस बीवी को देना है जो उसको पसंद नहीं है, तो बेहतर समझता है कि उसको मार डालो. लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने किया कि नहीं, औरत को शौहर से कुछ भी नहीं लेना है, और वो एक अपने रिस्पेक्ट के साथ रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे. एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा ये अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से. जी. दूसरा, शरीयत में किस तरह मुदाखलत है? देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने एक रूल बना दिया है. अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको पैदा किया है, और वो हमारी साइकोलॉजी भी जानते हैं, क्या चीज़ हमारे सही है क्या गलत है. ये शरीयत ने ये रूल जो बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि हमारे लिए क्या बेहतरी है. अब जो अभी की गवर्नमेंट है उसको क्या है कि वो हर बात में हमारी शरीयत में मदाखलत कर रही है. हर इसमें पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपको बेरोज़गारी हो, चाहे जो है ना वुमेन्स सेफ्टी का मसला हो, चाहे वो कंपटीशंस में जो इतने बच्चे मेहनत से करते हैं जिसमें जो है धांधली की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग बात हो, इन सब चीज़ों पे अगर बात नहीं करके सीधे एक मुद्दा है मुसलमान, और मुसलमान में भी उनको एक बेचारी मुसलमान औरत मिलती है. मुसलमान औरत बेचारी नहीं है. मॉब लिंचिंग में जिन मुस्लिम ख़वातीनों के शौहरों को, भाई को, बेटे को मार दिया जाता है, उसके लिए तो कोई ऐसा कानून नहीं ला रही है सरकार, या कोई ऐसा
बिल नहीं पेश किया गया या कोई ऐसा कानून या कोई उसमें भी तो उनके जो उनको माली तौर पर जो है उनको कोई सहूलत मुहैया कराई जाए, इस पर भी तो गौर देने की जरूरत है, क्या लगता है? देखिए, ये जो मुस्लिम औरत की बात करते हैं ये मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं है। इनको कोई मुस्लिम औरत से मतलब नहीं है। कानून लेकर आए, बोला कि ये महिलाओं के लिए, मुस्लिम खवातीन के लिए है। आप एक तरफ कहते हैं कि आपको भत्ता देना है, दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक का कानून है कि आप उसके हस्बैंड को जेल में बंद कर देते हैं। अब जो आदमी जेल के अंदर बंद है वो क्या अपने बीवी बच्चों को देगा? वो औरत तो ऐसे ही रोड पे आ गई, वो औरत, उसके बच्चे रोड पे आ गए। अगर ये शरीयत के हिसाब से होता तो उस बच्चे को तो बाप उसको केयर करता ना, वो कमाता, वो उसका केयर करता। आपने सिर्फ औरत को नहीं, औरत के बच्चे तक को रोड पे ले आए। ये सिर्फ एक कहिए कि मगरमच्छ के आंसू हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि जब इंसान अपनी गलती करता है ना तो वो उसको छिपाने के लिए दूसरी तरफ से बात करता है, तो उनके लिए बस एक जो कहिए कि टारगेटेड है वो मुस्लिम और मुस्लिम औरतें हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये तलाकशुदा भत्ता देने वाला और ये ट्रिपल तलाक का कानून किस तरह आपस में जो है टकराते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा किनारे रख दीजिए, जो ये वाला कानून आया है कि अगर कोई भी मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देगा वो अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो है उसको जेल हो जाएगी। जब एक आदमी जेल में हो जाएगा तो फिर वो कहाँ से कमाएगा और कहाँ से अपनी बीवी को देगा, भत्ता देगा? तो ये दोनों तो टकराता है एक दूसरे से। ये बस एक है मीडिया में इशू बनाने के लिए और लोगों को मेन मुद्दे से भटकाने के लिए सारी चीज़ें आती है, वरना एक्चुअल में देखिए तो इसका कोई बेस नहीं है। बल्कि अगर आप डेटा देखिएगा तो डेटा में मुसलमानों के यहाँ बहुत कम तलाक हैं, दूसरे कौमों में इससे ज़्यादा तलाक हैं, लेकिन बस मुसलमान औरत को लाके लोग उस तरफ भागने लगते हैं और जो असल मुद्दा होता है वो चाहे बेरोजगारी हो चाहे दूसरे मसले हो, छिप जाते हैं। तो क्या सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी की जो महिलाएं वही मजलूम नजर आती हैं क्या? देखिए, अब वही बात है ना कि ये तो असल मजलूमियत के इनका काम ही नहीं है। इनको तो है कि ऐसा मुद्दा लाओ जिससे पब्लिक भी खुश हो जाए और पब्लिक मुद्दे को भूल जाए। वरना आप देखिए जो फोर्स्ड विडोज होती हैं कि जिनको हस्बैंड जो है छोड़ देते हैं, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। मर्द जो है ना अगर चार शादी पे इस तरह बातें करते हैं, लेकिन अगर एक बीवी को रखते हुए अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है उस पर कोई भी इनका रूल्स नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें करार दे दिया है, उसको जायज़ कर दिया इन लोगों ने लिव इन को। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए हराम चीज़, गलत चीज़ को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं जिसमें औरतों का एक्चुअल में उनके साथ जो ना प्रॉब्लम्स हो रही है। अब मान लीजिए अगर एक मर्द है वो गलत इसमें जाता है तो वो अपने बीवी बच्चे का तो हक छोड़ रहा है ना, और आप उसको और जायज़ करार दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि आप उनका हक छीन रहे हैं। लेकिन वही बात है कि इनको औरतों के हक से कोई मतलब नहीं है, इनको बस एक चिल्लाना है माइनॉरिटी औरतें, ताकि लोग इस तरफ हो जाएं, लोग जो है ना लोग भटक जाएं, बस इनको भटकाना है, बस और कुछ भी नहीं है।